مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ آپ حضرات اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک اور شیئر بھی کریں، گھنٹی بیل آئیکن کو دبا دیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔ ہیلو، ہاں السلام علیکم۔ کس کو سلام کر رہے ہو؟ This call is now being recorded. جو مسلمان ہوگا اس کو سلام کر رہے ہیں، جو مسلمان نہیں ہوگا اس کو نہیں کرتا ہے۔ ہاں، ہمیں مسلمان مانتے ہو؟ تم تو مجھے پہلے سے جانتے ہو کہ میں کون ہوں، کیا ہوں۔ ہاں میں جانتا ہوں، کیا کہتے ہیں، تو پہلے جو بندی تھا بتا رہا ہے جو، پھر اس کے بعد تو بریلوی ہو گیا ہے، تو تیرے ماں باپ تو جو بندی ہوں گے۔ ابے چلے کے پلے، یہ دیکھ یار، پھر گالم گلوچ کر رہا ہے یار۔ نہ میرے باپ دادا کوئی دیوبندی تھے نہ کچھ تھے، میں بھی سنی تھا، میرے باپ دادا بھی سب سننی ہے، میرے اوپر تک تو سب الحمدللہ ایمان والے ہیں، بریلوی ہیں۔ میں ہی جو ہے دھوکے میں پھنس گیا تھا، کیونکہ یہ شیطان جو ہے بہت دھوکہ دیتے ہیں۔ ہمارے رشتے کا ایک ماموں تھا، اس نے میرا داخلہ کرایا۔ تو گالم گلوچ کر رہا، گالم گلوچ اچھی بات نہیں، یہ علماء کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ جو علم دینی علم رکھتے ہیں تھوڑی بہت بھی، اس کی شان کے مطابق نہیں ہے۔ بھائی گالم گلوچ، ہیلو، اچھا ابھی دیکھتا ہوں۔ ہاں، تو گالم گلوچ کرنے سے کچھ فائدہ نہیں بھائی۔ ہیلو، ہاں آ گئے، ہاں ہیلو، ہاں بھائی، ہاں تم نے ایک جھوٹا دعویٰ کیا اور ایک تحریر لکھ کے بھاگی کہ نور اصل بریلوی پھر سے فرار پہلے کی طرح۔ سن، کیا یہ سچائی ہے؟ تو قسم کھا لے، فون کر کے کاٹا کے بھاگا کہ نہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ 3 مرتبہ فون لگایا۔ سن میری بات، سن، میرا دعویٰ سچا ہے جھوٹا ہے؟ اچھا یہ بتا، میں نے تجھے دیکھ، سن، میرا نیٹ دوسرے چلے کے پلے یار، تو مجھے یہ بتا کہ فضائل اعمال میں جو میں نے حوالہ بھیجا ہے اور نیٹ میرے سم دوسرے ہونے کی وجہ سے نیٹ نہیں، میری تحریر جھوٹی ہے۔ دیکھ سن لے، تیری اماں نے تجھے اس نطفے سے پیدا ہی نہیں کیا جس نطفے سے حلالی پیدا ہوتا ہے، تجھے حرام کے نطفے سے پیدا کیا ہے اور ادھر ادھر کے نطفے سے پیدا کیا ہے، اس لیے تو بڑبڑائے گا، ٹھیک سے بات ہی نہیں کر سکتا تو مجھ سے، میں ابھی تک گالم ٹھیک سے بات ہی نہیں کر سکتا۔ انشاءاللہ ہمارے علماء نے گالم گلوچ کرنا سکھلایا نہیں ہے، ہم اس لیے ٹھیک سے بات نہیں کر سکتا، اگر کر بھی کیونکہ تیری رگ میں نے تیری دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھ دیا ہے میں نے۔ مجھے یہ بتا کہ اللہ کے علم کا انکار یہاں گلوچ کرنا یہ دکھتی، مولوی زکریا نے اللہ کے علم کا انکار کیا کہ نہیں کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کا انکار کیا یا نہیں کیا؟ جواب دے۔ سن، یہ حوالہ بھیجنے کے لیے میں نے تجھ سے کہا تھا، کال کٹ کر تجھ سے ہی کہا تھا، سمجھا؟ چلے کے پلے تجھ سے ہی میں نے بولا تھا۔ دیکھ سن، اب مجھے بتائیے اللہ کے علم کا انکار ہے کہ نہیں، اور اللہ کے علم کا انکار کر کے زکریا کافر ہوا کہ نہیں؟ خاموش تو ہو جا یار، تجھے بواسیر کی بیماری ہے کیا؟ کھجلی ہوتی ہے؟ زکریا کافر ہوا کہ نہیں اللہ کا علم کا انکار کر کے؟ سن میرا اب تفصیلی جواب سن، جواب تفصیلی ہوتا ہے، اجمالی جواب سمجھ میں نہیں آتا ہے، لوگوں کو بھی حق تک پہنچنا ہے، اس لیے تفصیلی جواب سن، ٹھیک ہے؟ سن، اب تو بولنا نہیں، اب تو نے سوال کر لیا کافر ہوئے یا نہیں ہوئے، ٹھیک ہے؟ تو پہلے تو یہ ہے کہ تو نے کہا کہ میں نے تحریر لکھی ہے، وہ جھوٹی تحریر ہے، ٹھیک ہے؟ لوگ فیصلہ کر لیں گے یہ تحریر جھوٹی ہے یا سچی ہے۔ جواب دے، جواب اس بات کا جواب دے۔ میں تیرے سارے سوالوں کا جواب دے رہا ہوں، دیکھ بھائی، مسلمان سب ریکارڈنگ میں سن لیں گے، میں تیرے جتنے سوال کیے ریکارڈنگ ہو رہی، سارے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ اگر میں کسی سوال کا جواب چھوڑ دوں گا تو کہے گا اس سوال کا جواب نہیں دیا، اس سوال کا جواب نہیں دیا، اس لیے میں تفصیل کے ساتھ ایک ایک سوال کا جواب دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تیرا پہلا یہ سوال تھا کہ میں نے جھوٹی تحریر لکھی ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تو نے حوالہ بھیجا، میں نے ایک کو لائن پہ لیا، جیسے لائن پہ لیا عارف بھائی کو اسی تو بھاگ گیا، ٹھیک ہے؟ تیرے بس کی بات نہیں رہی، سن یار، ادھر ادھر کال کر رہا ہے، بتا۔ میں ڈرا تو ہے نا، ڈرا تو ہے، میں ٹوک رہا ہے بھائی، میں ڈرتا تو میں فون نہیں اٹھاتا، میں سونے جا رہا تھا، لیکن میں نے کھانا ابھی تک نہیں کھایا ہے، میں نے کھانا کو بھی ترک کر دیا تھا۔ ابے چلے کے پلے، ایک 1.5 گھنٹہ ہو گیا ہماری والی بات کو، تو نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ سن تو وہ تحریر لکھی میں نے، لوگوں کے سامنے حقیقت واضح کروں گا کہ کیا مسئلہ ہے۔ سن یار، دنیا کی دیوبندیت میں کسی عورت نے کوئی ایسا بیٹا پیدا ہی نہیں کیا ہے، کوئی ایسا چلے کا پلا پیدا ہی نہیں کیا ہے
जो इस गुनहगार की शिकल दिखा दे। दुनिया बरेलवियत के अंदर जितने भी पैदा होते हैं वो सब गालम गलौज के साथ ही पैदा होते हैं। नहीं, ये नहीं। हकीकत है, दुनिया की सच्चाई है, सच को झुटलाया नहीं जा सकता, छुपाया नहीं जा सकता। रिकॉर्डिंग सुन लेंगे लोग कि मैंने कितनी मरतबा तुझे नामुनासिब अल्फाज कहे हैं और तूने कितनी मरतबा मुझे नामुनासिब और गालम गलौज दिए हैं। चिल्ले का अरे पिल्ले तुम कह हमें दिया। नहीं कहते शैतानो, हमारे नबी को तो कहते हो, हमारे रब को तो कहते हो। जब हम एक मुसलमान को नहीं कह सकते तो हम अपने नबी को कह सकते क्या तो कह चल सकते? बताइए फजाइल हमने तो अमाल अपने में, नबी के लिए- फजाइल अमाल में मौलवी जकरिया ने, फजाइल अमाल में मौलवी नहीं भाई, जकरिया ने तेरा अल्लाह के सवाल इल्म का इनकार क्यों किया? बोल। मैंने तेरा सवाल सुन लिया, मैं तफसील के जवाब दे। साथ हर अल्लाह के सवाल इल्म का का जवाब इनकार दे क्यों? रहा था। जवाब दे। मैं तेरे हर सवाल का अल्लाह जवाब दे रहा तबारक व था। तआला के इल्म तू सुन। का इनकार क्यों किया? जवाब दे। मैं तेरे हर सवाल का जवाब दूंगा ना, तो रिकॉर्डिंग हो रही, लोग सुनेंगे कि एक सवाल का बिल्कुल। जवाब दिया, दूसरे का नहीं दिया। तो मैं तेरे हर सवाल का जवाब दे रहा था, लेकिन तुझे खुजली मची हुई है, बवासीर की बीमारी होगी शायद के, इसलिए खुजली मचती है, फौरन बीच में बोल पड़ता है। तुझे बोलना नहीं है, तू बोल लिया, एतराज कर लिया, मेरा हक है अब जवाब देने का। ठीक है, सुनना भाई, मैं तुझे गलत नहीं कहूंगा। पहली बात यह है कि तू पहला एतराज की गलत तहरीर लिखी थी मैंने तो वो दे ही नहीं सकता। चल भाग यहाँ से। तू भागेगा बेटा, कहीं का सुअर कहीं का। मैं तुझसे कह रहा हूँ इसका जवाब दे के अल्लाह के इल्म का यही इनकार। चुका आ गया इधर नहीं उधर। बेटा, वो नहीं, तू एतराज 4 कर चुका है, जवाब मैं 1 कर दूंगा, तू भागेगा। ये जवाब दे कि अल्लाह के इल्म का इनकार क्यों किया मौलवी जकरिया ने? वो तो ये अभी जवाब पता दे। चलेगा कि इनकार किया कि नहीं। तू कयामत की सुबह तक नहीं दिखा सकता कि अल्लाह के इल्म का इनकार किया है। तो फिर पढ़ के मैं बता क्या दुनिया लिखा है? बरेलवियत को चैलेंज करता हूँ, किसी माँ की कोख ने वो बच्चा नहीं जना है जो ये साबित करता है कि चल। मौलाना जकरिया रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह के इल्म का इनकार किया है। चल पढ़ के बता। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सलाह कह देगा कि कुरान के अंदर ये आया है कि नमाज मत पढ़ो, पढ़ इस के तरह बता। गुमराह करेगा लोगों को। पढ़ के बता। पढ़ यार के बेशरम है पढ़ के बिल्कुल। बता। पढ़ के बता। नहीं, मैं तू जितने पढ़ के बता। सवाल तूने किया मैं कह रहा सब हूँ पढ़ सवाल के का बता। जवाब दूंगा। रुक जा, लायानी एक बातें मिनट। मत कर, कह रहा हूँ पढ़ के चल, बता। लायानी बात नहीं करता हूँ मैं, 1 मिनट पढ़- लाइन पे लेता हूँ, तू भी किसी को लाइन अबे पे ले, पढ़ उसके के बाद बता। बात होगी। पढ़ के नहीं, तू बता उसे। डरेगा, तू भाग जाएगा भाई, पढ़ कुछ के पता बता। नहीं। पढ़ के बता। पढ़ के मैं बता, तू एक की नापाक लाइन बता, पे, पढ़ के तू बता। किसी को लाइन पे ले, मैं भी लाइन पे बस हो लेता गया हूँ, तेरे 1 काम से भाग मिनट। यहाँ से। तू सुअर का भागेगा मुझे भाग। पता। हेलो हाँ जी, जी, 1 मिनट। इमामुद्दीन अय्यूबी कासमी बोल रहे हैं This देवबंदी। call is now being recorded. हाँ जी, बोलो। अच्छा, ठीक है, सही से क्या रिकॉर्ड करना है इसको, ठीक है हाँ बता, क्या बोल रहा? जी। देखो, अदब और एहतराम के दायरे में रह के बात करो। तुमने जो मैसेज किए हैं जरा मुझे पढ़ के बता सकते हैं या आपने क्या क्या लिखा है? हाँ मैं पढ़ के बता दूंगा, बताइए। लेकिन सुनो बात करेंगे अभी थोड़ी देर के बाद। नहीं, अभी तुमने तो बहुत सख्त जुमले कहे हैं, इसीलिए मैं तुमसे ही पढ़वा रहा हूँ। और तुम्हारी अभी बखियां उधेड़ूंगा, अभी इसी वक्त तुम्हारी बखियां उधेड़ूंगा। मैं आधा घंटे के बाद करता अबे हूँ फोन चिल्ले के तुम्हें। पिल्ले भागे मत। ये देख, तू गालम गलौज किसी को कुछ करता नहीं यार। भागना मत। मुझ- या तो तूने मुझे अभी बरेलवियों की मैसेज नहीं फितरत किए होते में इतने जाते। खतरनाक, इसीलिए तुझसे बोल रहा हूँ। तू पढ़ के बता क्या लिखा। सुन, मैं पढ़ के क्या, मैं ऐसे ही दोहरा देता हूँ, बोल। सुनते रह आराम से। बरेलवियों की एक बात बता, बरेलवियों की फितरत में गालम गलौज करना क्यों है? तू भागने का नाम क्यों ले रहा है? नहीं भाग नहीं रहा, मेरा गुस्सा बढ़ा रहा है। यार उन्हें मैसेज किए हैं, ऐसी बात बोली है। तू मैंने इस क्या बरेलवी कहा? से बात करके दिखा, तेरी चमड़ी उधेड़ूंगा मैं। इस बरेलवी से बात करके दिखा, तू जो ये लिख रहा है, बकवास कर रहा है, ऐसे भागेगा ना, अभी तेरी बखियां उधेड़ूंगा। सुन, पढ़ के बता। यार सुन ना, मैं पढ़ के भी बताऊंगा। तेरे जैसे शैतान बहुत आते हैं मेरे सामने, समझा? तू देख, ये देख, गालम गलौज बस गाली गलौज बदतमीजी तो तूने पहले की ना। कहा कि सलीके से गुफ्तगू का। हाँ तो सलीके से कर रहा चल, हूँ। सलीके से बात करो और पढ़ के बता। भागने का नाम मत ले। मैं नहीं भागूंगा यार, सुन। लेकिन तुम लोग गालम गलौज करते हो यार। सुन, फोन काट के तो ऐसे भागेगा तू, पता नहीं 1 महीने तक नजर आएगा कि नहीं आएगा, पता नहीं कब तेरा फिर आएगा, कब होश आएगा तुझे। अभी तक दुनिया देवबंदियत में किसी देवबंदी ने, मैंने क्या लिखा, देवबंदी औरत ने ऐसा बच्चा पैदा ही नहीं। दुनिया बरेलवियत के अंदर किसी माँ की कोख के अंदर वो फैज मौजूद नहीं है, और किसी माँ की कोख में वो बच्चा नहीं जना है जो उलमाए देवबंद का मुकाबला कर सके। समझा? मैं सुन लिया? मैं मुकाबला करूंगा। तू लेकर मुकाबला आ, तू बड़े से बड़े देवबंदी मौलवी को लेके आ। तू तो मेरे सामने चल, तू मुकाबला करेगा। कुरान शरीफ आता नहीं तुझे, हदीस तुझसे आती नहीं। अच्छा, मुझसे आती या नहीं आती? तेरा मेरा झगड़ा इस बात थोड़ी है कि मुझे कुरान आता है या नहीं आता है। यार तुझे कुरान ही नहीं आता तो कभी यार तू जाहिल आदमी यार। भाई सुन,
तेरा मेरा झगड़ा कुरान पर है कि कुरान याद है या नहीं है? तो यार पहले ये कहना ना कोई देवबंदियत के अंदर कोई है ही नहीं जो तेरा मुकाबला कर सके। तो मैं कह रहा हूँ पूरी देवबंदियत को कर रहा हूँ यार। तुझे अल्लाह मुत्तकासुर का तर्जमा कर दे। खामोश तू अल्लाह सब लोग सुन रहे हैं। देखिए मुसलमानों हालत सब लोगों के सामने जाएगी पर्सनल में व्हाट्सएप में, और इसने आपके मुसलमानों मैंने यही कहा कि दुनिया बरेलवियत के अंदर किसी माँ की कोख ने वो बच्चा नहीं जना है जो उलमाए देवबंद का मुकाबला कर सके। हमने हर मैदान के अंदर लड़का है दुश्मनों को हमने लड़कारा है जो तेरी पूरी दुनिया देवबंदियत को लड़का। अभी हेलो बात कर लो। हेलो हेलो नूर हसन। हेलो हेलो लैन पे है, लैन पे बात करो। नूर हसन वो मुंह ही नहीं खोलेगा, गारंटी है। चल उठा बोले भाई। हेलो बोल रहा हो चलो। हेलो हेलो फोन उठा के बात नहीं कर रहा वो। हाँ वो बात नहीं करेगा, समझ गया होगा। अभी तो मैंने नए नंबर से फोन किया तो उठा के बोल नहीं रहा है कि आवाज सुन ले पहले किसका है। जब आवाज समझ गया तो फिर दोबारा बात ही नहीं किया। मैं लगाते रहता हूँ इन लोगों के पास हरामजादे, इनकी हड्डियों में पानी भरा हुआ, बहुत बेगैरत समाज के लोग। इनको जिंदगी भर भागना है, जिंदगी भर भागना है मुझे। ना पेंट। हेलो हाँ अनिस भाई, माजिद भाई। हाँ वो तो कोई भी नहीं उठा रहा, वो उठा के बोला नहीं वो। अच्छा ये ताहिर रजा को लगाओ। ताहिर रजा को नहीं ना, उसको लगाना। क्या बोले? उसने मुझे मना कर रखा फोन करने के लिए। कहने लगा नहीं तुम मुझे फोन मत लगा करो। ताहिर रजा बोला है? हाँ ऐसा। हाँ तो अरे अली खान अब्दुल हमीद को लगाऊं? अरे वो सड़ेले से क्या बात करने का, उसके पास कुछ मालूम ही नहीं, उसको क्या बात करूं। तो उसको बोलने तो सुनो, उससे कहने का कि ले तेरे बाप को जलालुद्दीन को लाइन के लिए हिम्मत है तो ऐसा उसको। अरे दिन रात मैं ग्रुपों में बोल रहा हूँ, उनके पास फोन पे बोल के क्या मतलब है, लेगा क्या? लगाऊं ना उसको अब्दुल हमीद को? नहीं उससे क्या बात करना है। तीसरी क्लास तो बोल रहा है कि अली खान के अंदर हिम्मत नहीं है तो मार रहा है। अच्छा मेरे पास फिल्म नहीं है। हाँ ऐसा वो कह रहा है कि हाँ क्योंकि वो तीसरी क्लास का मेरे अदब पड़ा हुआ है ना। तो ले लो उसको लाइन पे अब्दुल हमीद को। नहीं उसको क्या लेने का, ऐसा इनके अकाबिरों को लो, अकाबिरों को। कोई है इन लोगों में से? हाँ जैसे नूर हसन तो उठाया, कुछ बोला ही नहीं रहा है, इतना डर गया। वो नहीं बोलेगा, पूरा इनका मैंने ऐसी ठोकाई कर दी है कि इनका होश ठिकाने आ गया। समझ में आ गया? हाँ कोई भी है सबको मेरा नंबर दो, बोलो ये लो, इन लोगों के पास फोन लगा के मेरी बात करवाओ। समझ गए? अच्छा अख्तर निजामी का नंबर लेंगे? अख्तर निजामी के पास लगाया और टाइम कैसे लिया, अभी लगाया हूँ मैं। तुम्ही ज्या व्यक्तीशी बोलत आहात त्याने तुमच्या कॉलला होल्ड ठेवला आहे। कृपया ना। कौन? हेलो हाँ हेलो कौन? जी है अल्लाह का खाना कौन? मैंने पहचान। हाँ हेलो अली खान साहब। हाँ
रिफायत अरे मैं हूँ, तुम मुझसे बात कर रिफायत। This call is now being recorded. हेलो हेलो रिफायत अली कौन है? ये कौन देवबंदी है जिसने मुझे फोन लगाया? है क्या मुझसे किसने देवबंदी ने फोन लगाया है? सामने ये देखो, ये है देवबंदियों का चर्चा पट्टा, ये देवबंदियों को फोन लगवाता है मुझे, और बजरिया देवबंदियों के ये हमें चैलेंज कर रहा है। ये हरामखोर कितना बड़ा मनोज लालची देवबंदियों का दलाल है। रखे हो तो क्या करें, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। तू भी बदमज़ाब, ये भी बदमज़ाब, हमें तो दोनों की ठोकाई करनी है। भाग गया। हाँ, तू भी बदमज़ाब, ये भी बदमज़ाब, हमें तो जिसकी भी ठोकाई करने को मिल जाए। हेलो रिफायत अली, भाग गया। वो हरामज़ादा भागेगा, इनकी जमात में ऐसे ही है। हाँ, इनको मैं छोड़ूंगा थोड़ी है। ऐसा मेरा नंबर सारे ग्रुप में शेयर करके, और उसके बाद में इन लोगों का भी नंबर शेयर करके, और उसमें ये सिर्फ बोलने का कि ये अली खान से इन लोगों की बात करवाओ, रात दिन फोन लगाओ इन लोगों के पास। हाँ, ये हरामजादों का मैं बताता हूँ सही तरह। हरामजादे किताबों में तहरीफ करते हैं, अपनी मानवी तहरीफ चला के उसके बाद में हरामजादे अवाम को गुमराह करते हैं। जी। हाँ ठीक है, अच्छा अली खान, हाँ ये क्या बोलते हैं, ये लोग बरेलवी हैं कि नहीं है, कि लुधौलवी है क्या ये लोग? रुधौलवी है, बरेलवी नहीं है, फर्जी बरेलवी बने हुए हैं। ऐसा? इस पर मैं इनको मुनाजरे का चैलेंज कर रहा हूँ, भाग क्यों रहे फिर? हाँ, तो ये बरेलवी थोड़ी है। कौन कौन, जैसे जलालुद्दीन हो गया, नूर हसन हो गया, रिफायत अली हो गया, अख्तर निजामी, ताहिर रजा, नूर हसन, रिफायत अली, और उसके बाद ये एक रज़ाउन हक वाला और समीर चैनल वाला, समझ गए? ये सब रुधौलवी मसलक वाले हैं। अच्छा, बरेलवी है ही नहीं है ना ये लोग? ये सब इतना ज्यादा झूठ बोलते हैं कि यहूदी भी इतना नहीं बोलेगा। ऐसा? हाँ, किताबों के ताल्लुक से झूठ बोलते हैं हरामजादे। ऐसा? हाँ, तो मैं इस पर चैलेंज किया, वो भागते क्यों है? अगर मैं झूठा हूँ तो फिर भागे क्यों? मैं तो साबित करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, चलो रखो, मैं थोड़ा काम में बिजी हूँ। चलो ठीक है, चलो ठीक। टेप लगा दो, लगा दे। वो है कौन सा? हेलो 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 नूर हसन, तेरी औकात नहीं हो रही है क्या बात बोलने की? तेरी जमात में कोई हलाली है जो मुझसे मुनाजरा कर सके? हेलो हेलो, तुम्हारी जिंदगी झांट करके रख दूंगा मैं, हरामजादो, बुज़दिल मजहब की बुज़दिल पैदावार, जहन्नमी कुत्तो। हेलो 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 हेलो। अस्सलामुअलैकुम हजरत। जी वालेकुम अस्सलाम भाईजान, खैरियत? जी हजरत, आपकी दुआ है। और क्या हजरत, मैं ये अर्ज कर रहा था हजरत, एक कोई है यूट्यूब पे हजरत, बहुत परेशान कर रहे हैं सवाल कर करके। यूट्यूब पे? जी, कमेंट में ना क्या बोल लिया? कह रहे आप हमारे नबी को क्या मानते, नूर या बशर? अच्छा, तो उससे नंबर ले लो प्यार मोहब्बत से, ना नंबर दीजिए आप। मैंने हजरत कहा, वो नंबर ही नहीं देना चाह रहे हैं। बस तो उसके हराम के पिल्ले को छोड़ दो, वो ऐसे ही जो है ना परेशान करेगा। अच्छा हाँ, एक बार हजरत मैंने आपका नंबर दे दिया था, शायद आपके पास कॉल आया या नहीं आया, पता नहीं। मेरे पास तो बहुत सारे कॉल आते हैं। जी हाँ, मैंने लिखा था ना हजरत कमेंट में कि मेरा रजा हक पर है,
तो इसने कमेंट किया था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ लिखा है। तो ये अहले सुन्नत लिख दिया आपने आपको 100%। जी जी जी। अगर ऐसा ही है तो आपका अकीदा बताया कि आप हमारे नबी को जातो नूर जातो इससे लिखने भी नहीं आया है, जी वही खाली तो। नू लिखा है, नूर भी नहीं लिखा है। जी जी। हिसाब से लिखना था या एतबार से लिखना था, पता नहीं किसने लिखा क्या है, उसको खुद जी नहीं पता। अगर वो पढ़ेगा तो वो कहेगा कि हाँ गलती है पढ़ने लिखने में। और मैंने लिख दिया पहले या तो कॉल करो सिफात के मुझे ताल्लुक से इसने पूछा है जी कि हुजूर को क्या मानते हो, नूर या बशर। जी जी। हाँ तो हजरत अपने लोग तो दोनों मानते हैं ना। जी जी, हुजूर नूर भी हैं बशर भी हैं, मगर उससे कुछ कहना मत शैतान के पुत्र से। उसका मैं खाली प्यार मोहब्बत से नंबर ले लो और मेरे हवाले कर दो, जी ठीक हाँ, है। ऐसे और प्यार उसे फिर मोहब्बत से कॉल पे नंबर। कॉन्फ्रेंस पे ले लेना, फिर मैं हेडूंगा उसकी बात। जी 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 हाँ, क्योंकि इनको ना उसी तरह से मारना चाहिए जिस तरह से ये मरना चाहें। जी जी। हाँ, इनको उल्टा लटका के मारो फिर बेहतर रहता है। इन्हीं का लगाया हुआ हुक्म इन्हीं का गले में डाल दो, घूमता फिर अब। जी जी। हाँ चलिए हजरत, मैं इसका नंबर हाँ, लेने की प्यार कोशिश मोहब्बत से उसका करता हूँ। नंबर ले लो आप, जी जी। चिल्ले के पिल्ले से। हाँ ठीक है। ठीक है सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। हाँ तो हाँ, नूर हसन रजवी बात कर रहे हैं। जी, आप कौन? जी हम सुन्नी हनफी बरेली। सुन्नी हनफी बरेलवी। हाँ जी हाँ। अच्छा अच्छा, कहाँ से हैं भाईजान? हम महाराष्ट्र से हैं। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद इसरार। अच्छा, मोहम्मद असरार। अच्छा, सुन्नी हनफी बरेलवी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खैरियत से हैं आप? जी मैंने सलाम इसलिए नहीं किया आपको जनाब, क्योंकि आप जो है तो तबलीग बददीनों को सलाम का जवाब नहीं देते ना आप। हाँ, मैं नहीं देता। इसलिए मैंने अपना तारुफ करा लिया आपसे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चलिए, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। और खैरियत से हैं आप? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। आपके वीडियो सुनते रहता हूँ मैं। अच्छा हजरत। तो वैसे मुझे ख्याल आ गया, चलो बोला बात तो कर लो नूर हसन रजी साहब से। जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा है जनाब, आप जो काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है, लोगों की इस्लाह भी हो जाती है। जी हजरत। हमारे यहाँ तो कैसा है जनाब, हमारे यहाँ पे सूले कुल्लियत के काम ज्यादा है इधर। अच्छा, मतलब कैसे लोगों को जैसा अपन बोलोगे भाई तबलीग जमात से ताल्लुकात रखना नहीं। जी उनके अकीदे से बद अकीदे है, बहुत गंदे ख्यालात है, जी। कैसे कैसे अकीदे घड़े हुए हैं। हाँ। तो वो बोलते अपने को क्या लेना देना, वो उनका झगड़ा है, ऐसा है वैसा बोलते हैं जनाब। भाई अपना तो माशाल्लाह ऐसा काम है ना, उनसे रिश्तेदारी कायम करते जी ना, उनसे दोस्ताना रखते ना, कोई अपने पास उनका कांटेक्ट नंबर है। जी। और अपने पास कोई आया भी ना जनाब तो हम खुला बोलते हम सुन्नी हनफी बरेलवी है जी, माशाल्लाह। तो वो फिर उसके चेहरे की रंगत उड़ जाती जनाब। जी जी जी, हाँ जी हाँ। माशाल्लाह। हाँ, और सुनाइए। बस अल्हम्दुलिल्लाह। ये लोगों की सर जनाब, ये लोगों की मेरे ये बात समझ में नहीं आती, जब आप कुरान पाक की दलील देते हो, हदीस पाक सुनाते हो, तो इन लोगों की समझ में दिमाग में बैठते ही नहीं कुछ। ये मुझे बड़ी हैरत होती जी। यानी ये ऐसा समझो ये कि ये शैतान के मुरीद बने हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, शैतान जैसे रिसालत माफ जैसे रिसालत से इनकार किया था ना उसने। जी जी जी। भाई तो ये लोग वैसे ही है जनाब। जी जी जी। यानी इनको कितना भी दिमाग, अपने दिमाग भी इनके सामने कर डालेना तो ये इनको आखिर को उस पर ही आते हो। जी। हालांकि अपने साथ में मिली जुली बातें करेंगे, हम मोहब्बत करते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, हाँ, सब बातें करेंगे, लेकिन उनके सामने अगर कुछ कुरान पाक क्या है तो अपन समझा कर भी बोलो जी या हदीस पाक का मफहूम भी समझा कर बोलो, तो सर ये जो है ना, तो उनका जो ऐसा समझिए कि अल्लाह ताला ने इन पर मेहर लगा दी। जी जी जी, मोहर कर दी। हाँ,
है क्या नहीं, महर लगा दी उनको, और कितना भी बोलेंगे कितना भी समझाएंगे तो वो समझने के जी नहीं है क्या नहीं जनाब। जी हजरत। हाँ, तो मुझे आपकी वीडियो सुन के बहुत अच्छा लगता है जनाब। अल्लाह ताला आपको और ताकत दे, हिम्मत दे, शुक्रिया हौसला अफजाई दे। हजरत। हाँ, करते रहिए आप दीन का काम। इंशाअल्लाह। हाँ जी हाँ, लोग तो कैसा है बहस मुबाहिसा करते रहते, कुछ भी बोलते रहते, जी और अपना काम है लोगों की इस्लाह करना। बेशक। अगर 100 लोगों में से समझो 2-4 लोग ही अगर राह हिदायत पर आ गए तो वही अपनी कामयाबी समझो। हाँ बस यही सोचता हूँ कि मेरे जो भाई इन बदमज़हबों में धोखे में अनजाने में जो हैं और इनको जो है सही जानते हैं, सही समझते हैं, वो समझ जाएं और वो वापस पलट आए, यही बहुत है। हाँ जी हाँ जी हाँ, कम से कम काफिर होने से तो बच जाएंगे। हाँ जी हाँ जी हाँ, बेशक। वरना एक दिन ये हाल आएगा कि हुजूर के किसी कमाल का इनकार करके, हुजूर की कोई गुस्ताखी करके, कुरान पाक की आयत का इनकार करके कहीं ईमान से ही हाथ ना धो बैठे। हाँ जी हाँ जी हाँ, है ना? बेशक बेशक, इसमें कोई शक नहीं। हाँ तो हम जैसे अमीनुल कादरी की भी बयान सुनते रहते, अमीनुल कादरी साहब के, फारूक रज़वी साहब के, ये भी जो है ना मुकम्मल तौर पर बायकॉट करते हैं जनाब उनका। जी। तकरीरें सुनी होंगी आपने फारूक रज़वी, सैयद अमीनुल कादरी साहब की? हाँ सुनी होंगे ना, वीडियो देखे होंगे ना? जी जी जी। वो भी मुझे बहुत अच्छी लगती है, वो भी मैं ज्यादातर वो भी सुनता हूँ। लेकिन अभी आपका भी आया मेरे यूट्यूब पर जी, तो मैंने आपका भी चैनल सब्सक्राइब किया हूँ, मैं सुनते रहता हूँ जनाब आपकी वीडियो। अच्छा अच्छा हजरत, शुक्रिया। हाँ, मुझे बहुत खुशी महसूस होती है कि चलो कोई है तो सही अपना मुसलमान बंदा, मोमिन बंदा। मैं भी असल में इन्हीं लोगों से निकल कर आया हूँ हजरत। अच्छा अच्छा। मुझे मालूम नहीं था, पता नहीं था कि ये लोग ऐसे गुस्ताखे रसूल होते हैं। हाँ हाँ जो तहकीक करेगा निकल कर जरूर आएगा, जिसे हुजूर से सच्ची मोहब्बत है। हाँ जी हाँ जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, समझे हजरत? हाँ जी हाँ जी हाँ, जो हुजूर से सच्ची मोहब्बत करता है वो इन लोगों में नहीं रह सकता। हाँ जी हाँ जी हाँ ठीक। आप ही की तरह एक सूफी हनफी कलीम रज़वी भी है मुंबई की। जी 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 जी, वो भी बहुत रद्द करते हैं जनाब इनका। हाँ माशाल्लाह, वो तो खैर आलिम है, अल्लाह ताला ने उनको बहुत बड़ा इल्म दिया है, मुफ्ती हैं वो माशाल्लाह। हाँ जी हाँ जी, वो तो इनको हर तरह से धो डालते हैं। हाँ हर तरह से धो डालते हैं, हर बात का सबूत पेश करते हैं, मगर फिर भी ये शैतानों के ऐसा था मेरे पास, ये गुमराही हुए ऐसा जनाब। जी 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 माशाल्लाह। उनको अगर कितनी भी अच्छे से समझाओ, कुछ भी कर दो तो वो, हालांकि फोन लगाते यही लोग, हाँ वो नहीं लगाते, फोन लगाते यही लोग लगा के फिर उल्टे सीधे बातें करते। तो अब जिस तरीके से सामने, अब जिस तरीके से मैं आपसे बात करूंगा जी, उसी तरीके से आप मुझसे बात करेंगे जी। हाँ, और इनके ज्यादातर अल्फाज गुस्ताखाना अल्फाज ही होते जनाब। ये लोग हमें गालियां बकते हैं, बहुत सारी गलत बातें बोलते हैं, हम सब सहते हैं, सब बर्दाश्त करते हैं। हम अगर इनको थोड़ा सा भी कुछ कह दें तो इनको मिर्ची लग जाती है और कहते हैं देखो ये नूर हसन बरेलवी बदतमीज बोलता है, गलत बोलता है। अरे तुम्हारे जो चिल्ले के पिल्ले मुझे माँ बहनों की गालियां बकते हैं और बदतमीजियां करते हैं और मतलब हमारे परिवार के लिए गलत वर्ड इस्तेमाल करते हैं, मैं देखो मैं सीना अपना चीर के नहीं दिखा सकता हूँ, नहीं हजरत, समझे? और मैं बहुत सारी बातें मतलब पी जाता हूँ जो हमें मतलब जिस तरह से बोला जाता है मैं नहीं सुना पाता हूँ। मैं क्या यार गंदी बातें मैं आप सबके सामने बार बार सुनवाऊं। हाँ सही है, समझे? माँ बहनों की गालियां बकते हैं और बहुत कुछ ये लोग कहते हैं, मगर मैं अब नहीं करता हूँ ऐसा, अब नहीं सुनवाता हूँ, सब नहीं डालता हूँ। हाँ, एक शैतान का पुत्र अभी अभी आके जो है गलत वर्ड इस्तेमाल कर रहा था। अच्छा। हाँ, तो खैर कोई बात नहीं, मैंने उसका जो है, उसने व्हाट्सएप पे कॉल किया मुझे। अच्छा। और मैंने उसका वो रिकॉर्ड कर लिया। अच्छा। ये शैतान का पुत्र सोच रहा था कि ये रिकॉर्ड नहीं करेगा, मैंने उसको बता भी दिया फिर। हाँ, और फिर जो उसने बात कही मैंने कहा चल खुदा की कसम खा, तूने ऐसा किया है, बोल खुदा की कसम खा। अच्छा। हाँ, खुदा की कसम नहीं खाई और फोन काट कर भाग गया। मुकर जाते ना, मुकर जाते। अगर सच्चा है तो खा खुदा की कसम कि तू सच बोल रहा है। हाँ हाँ,
है ना। किसी को गाली गलौज करने से, किसी को धमकी देने से, किसी को बदतमीज बोलने से क्या फायदा होता है? नहीं, कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं होगा ना। नहीं, कोई अगर जबर है ना। हाँ। और बातिल भी है और किसी हक वाले को दबा ले, कोई कमजोर है हक वाला, हाँ, तो दबाने की बुनियाद पर हक होने की दलील तो नहीं हो सकती ना। नहीं कि तूने दबा लिया तो तू हक पे है। नहीं हो सकती। किसी को चांटा मार दिया, तू जबर है तो तू हक पर है। हाँ, नहीं। हक पर तो तू तब कहलाएगा जब तू अपनी बातों से हक साबित करवाएगा। बेशक है ना। सही है। तो ये लोग हमारे सुन्नी मुसलमानों को डरा लेते हैं, धमका लेते हैं, और मैं कहता हूँ कि उनके पास किस बात का ईमान है यार, जो डर जाते हैं, धमक जाते हैं। हाँ। और उसमें अरे तुम अपने बड़ों से कहो ना, अपने बड़ों से बोलो। हाँ जी, वो आगे जो है आगे की बात करेंगे। हाँ। अगर तुझे इल्म ज्यादा नहीं है तो तू बहकावे में क्यों आ रहा है? हाँ। उनके जो चिल्ले के पिल्ले होते हैं, अगर वो किसी बात का जवाब ना दे पाए तो वो कहते हैं कि नहीं हम अपने उलमा से पूछ के बताएंगे। हाँ। तो यार हमारे भाइयों को भी तो इतनी अकल और शऊर होना चाहिए कि वो भी कहें कि हम अपने आलिमों से पूछ के बताएंगे। हाँ जी, मेरा भी यही कहना है। मैं तो हमारे साथ तो देखिए जनाब कोई उलझता ही नहीं है, क्योंकि अपनी कैसा है, पहले से टनाटन सुन्नी है। हमारे बाप दादा से टनाटन सुन्नी है। हमारे दादा इंतकाल का जब टाइम आया था ना जी, सुन रहे जनाब। हाँ। हमारे दादा जान का जब इंतकाल का टाइम आया था ना, तो उन्होंने यही वसीयत करके गए थे कि मैं अपने खानदान में से कोई बच्चे को जमात में भेजना नहीं जी। ये वसीयत करके गए थे जनाब जी। और गलती से हमारे बड़े अब्बू का लड़का एक चलेगा था। अच्छा। गलती से जैसा जी। तो गया तो सही था इस्तेमाल में ट्रक में। हाँ। लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट जनाब। अच्छा। एक्सीडेंट बोले तो उसको मार लग गया था। ओहो जी। तो उस तारीख से फिर हमारे बड़े अब्बू ने भी भेजे नहीं फिर उस तारीख से जनाब जी। यानी जो हमारे दादा की वसीयत थी जी वो सही थी ना। हाँ। कि अपने खानदान के बच्चों को कभी भी तबलीग से जोड़ना नहीं। जी। तो माशाअल्लाह जनाब हमारे दोनों खानदान में जी टनाटन सुन्नी है जनाब। मसला के आला हजरत पर ही कायम है जी। और ये जो अपने कुछ भाईबंद कैसे रहते, जैसे इनको कुछ समझ नहीं आता जनाब, तो उनमें क्या है ये मिलजुल जाते। अपने जो जी कमजोर ईमान के जो लोग रहते ना, तो ये इनसे मेल मिलाप चालू रखते जी। और अपना वैसा है नहीं। हम तो जनाब ऐसे है कि हम तबलीगी लोगों की ना शादी में जाना गवारा करते हैं, ना उनकी मैयत में जाना गवारा करते जनाब। जी बेशक। और कुछ लोगों को समझा के भी वजह से इतना समझ में आती नहीं उनके। जी। फिर भी अपने जो भाई बहन है उनको बोलना चालू रहता अपना, देखो बाबा ऐसा नहीं ऐसा है, ये ऐसा नहीं वैसा है जी। तो कुछ लोग समझ जाते कुछ लोग। और कुछ लोग तो ऐसे है कि फिर अब उनको कितना भी समझाओ तो उनकी समझ में आती नहीं। वो उनको कैसा एक धाक रहती क्या हम मिलना जुलना नहीं करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, वैसा नहीं करेंगे तो अपना कैसा चलेगा, कारोबार कैसा चलेगा, इस पर आ जाते हो जी। तो ऐसे ही माहौल चल रहा है आजकल। हाँ सही बात। यानी ये लोग कैसे है, नमाज रोजा की आड़ लेकर जी इंसान को ऐसा कुछ गोटे में डाल देते हैं कि बस उनको वही लगता है भाई नमाज रोजा सिखा रहे हैं। जी। अच्छा एक मिनट तरीके। हाँ हेलो। हाँ हेलो। हाँ बोलिए ना। जी हजरत मोहम्मद रफी भाई, आवाज नहीं आ रही उधर से जाने क्यों। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हजरत, अच्छा मैं अभी रुक के बात करता हूँ जरा। हाँ जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।